organized by the Drug Abuse Control Committee, Lahore College Women University, and in collaboration with the Drug Advisory Training Hub. The topic of our lecture is drug use prevention and our responsibilities. It's a very important topic, and it's an issue that needs to be addressed, and we are very fortunate that we have been joined by our distinguished resource person. Before we have the lecture, we will begin the session with recitation from the Holy Quran. I ask Bushra Zafar from BS Applied Psychology to please recite from the Holy Quran. Assalamu alaikum everyone. Am I audible? Yes, you are. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Do you then think that we made you in vain, and you are not to return to us? Then exalted high is Allah, the true King. There is no God except He, the Lord of honored throne. And whosoever worships any other God besides Allah, for which he has no proof, then his account is with his Lord. Undoubtedly, the infidels have no rescue. And you submit, O my Lord, forgive and have mercy, and you are the best of merciful. Sadaqallahul Azim. Jazakillah khair. It is my pleasant responsibility to introduce our guest speaker for the day. He is Mr. Syed Zulfikar Hussain, who is consultant anti-drugs or narcotics campaign. He's the director of Drug Advisory Training Hub. He has vast experience in the field of drug demand reduction, drug use prevention, and crime prevention. He's also a certified trainer in drug abuse prevention program. He has organized many conferences, seminars, talks, trainings, and meetings on the national and international level. I think we're very fortunate that someone with such great expertise in the field has joined us today to talk about this very important issue. Sir, we request you to please deliver your lecture. Could you please unmute your mic, please, sir? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपने लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी और जो कमेटी है ड्रग्स की यहाँ बनी हुई, उन्होंने अहम इशू पे आज कुछ कहने का मौका फराहम किया है। मैं साथ ही शुक्रगुजार हूँ वाइस चांसलर साहबा का और ख़ासकर बुशरा नदीम साहबा का, उसके बाद मैडम तल्लत का, आपका, जितने भी हमारे साथ इस वक्त साथ शामिल हैं। इसमें कोई शक नहीं कि
तकरीबन गुज़श्ता 5 साल से लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के साथ हम काम कर रहे हैं और अच्छे तरीके से प्रिवेंशन के हवाले से मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं और ये यूनिवर्सिटी को एजाज़ हासिल है कि हमने यहाँ 3 फोकल पर्सन के एनुअल कन्वेंशन भी किए और उसके बाद मुख्तलिफ जो चीज़ें थी वो इंट्रोड्यूस करवाई। आज का जो आपने जो टॉपिक है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि प्रिवेंशन है क्या और प्रिवेंशन के साथ साथ फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। प्रिवेंशन से पहले मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड ये जानना सबके लिए ज़रूरी है कि प्रिवेंशन की जब हम बात करते हैं तो पहले सिर्फ लोग वॉक किया करते थे सेमिनार करने के बाद या ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करने के बाद खामोश हो जाते थे। यूनाइटेड नेशन का जो अदारा है जो UNODC एक सब अदारा ड्रग्स के खिलाफ जो पूरी दुनिया में काम कर रहा है ड्रग्स एंड क्राइम के खिलाफ, उन्होंने तकरीबन 30 साल पहले एक स्टडी शुरू की कि प्रिवेंशन को एक साइंस का दर्जा देने के लिए तकरीबन दुनिया के 57 ममालिक में मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय ली गई, उनको साथ शामिल किया गया और बड़े कई सालों के बाद फिर एक नतीजा अखज़ किया गया आज से 10 साल पहले और प्रिवेंशन को इज़ ए साइंस डिक्लेयर किया गया और एविडेंस बेस्ड यानी जो भी बात की जाए वो एविडेंस बेस्ड हो, विदाउट एविडेंस बेस्ड कोई ना हो। यानी अगर ड्रग्स की पॉपुलेशन है वो एविडेंस बेस्ड के सर्वे के मुताबिक बात की जाए, कितने लोग इसमें मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व है वो भी एविडेंस बेस पे बात की जाए। आप उसके बाद फिर जो ये बेस करती है चीज़ें वो ये करती हैं कि साइको सब्सटेंस यूज और सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर ये बेसिकली हमारी इकोनॉमी को, हमारी हेल्थ को और हमारे जो माहौल को ये डायरेक्टली हिट कर रहे हैं। इसी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा ने ये फैसला किया कि एक ऐसी चीज़ मुतारफ़ करवाई जाए, एक ऐसी चीज़ लेके आई जाए जो कि एविडेंस बेस हो। उसके महरक़ात जो हैं वो हेल्थ के साथ रिलेट कर रहे हैं, हेल्थ के साथ साथ फिर इकोनॉमी के साथ और फिर हमारे एनवायरनमेंट माहौल के साथ जो हमारे माहौल को ख़राब कर रहे हैं। इस वक्त जो अक़वाम मुत्तहिदा के अदाद-ओ-शुमार हैं 2011 या 12 के, वो कहते हैं जी तकरीबन 167 मिलियन से लेकर 315 मिलियन तक लोग जो हैं जिन्होंने एक बार या एक से ज़्यादा बार जो एडिक्शन की तरफ कदम रखा है और आहिस्ता आहिस्ता अब ये 2020 है, अभी नया सर्वे या रिपोर्ट आएगी उसमें ये तादाद और भी बढ़ चुकी है। पहले एविडेंस बेस या साइंस जो कि प्रिवेंशन से पहले हम डराने वाली चीज़ें, डरा के चीज़ों को बताया कर, स्केरी चीज़ें बताते थे कि जी हमारे पोस्टर जो डराने वाले होते थे, हमारी गुफ्तगू में इतना डरावनापन था कि उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल दिया करते थे, मिसालें दिया करते थे। लेकिन एविडेंस बेस्ड जो प्रिवेंशन है उसमें ये सारी चीज़ों को माइनस कर दिया गया। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि एक वर्ड है से नो टू ड्रग्स। ये बेसिकली नैन्सी रेगन थी जो वाइफ थी, फर्स्ट लेडी थी, उन्होंने ये अमेरिका में एक कैंपेन स्टार्ट की थी और उस पर आज $1 ट्रिलियन खर्च हुए। लेकिन 5-6 साल पहले इस पे फैसला किया गया कि इस कैंपेन का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। आप सिर्फ स्लोगन रेज करते हैं, चीज़ों को ड्रेस नहीं करते। जब आप चीज़ों को ड्रेस करेंगे स्लोगन के साथ और बेसिक जो चीज़ें हैं एविडेंस बेस्ड वो सामने लेके आएंगे तो उसमें बेजा बेहतरी नज़र आएगी। तो वो अमेरिका में इतनी बड़ी जो से नो टू ड्रग्स एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो कैंपेन बिल्कुल ख़त्म हो गई है, उसका कोई उन्होंने बेनिफिट नहीं लिया और वो भी एविडेंस बेस्ड प्रिवेंशन पे। इस एविडेंस बेस्ड प्रिवेंशन की जो थ्योरी है इसमें दो मेजर, एक मेरी टीचर भी वो रही हैं डॉक्टर जिल्ली सलबोडा, अमेरिका की बहुत बड़ी प्रिवेंशन एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इन चीज़ों को डिज़ाइन किया है, बाकायदा सर्टिफाइड जो इसका मटेरियल तैयार किया, इसका कोर्सेज तैयार किए और पूरी दुनिया में तकरीबन
50+ कंट्री में इसको इंट्रोड्यूस करवाया। और इनमें सबसे बड़ी जो बात है उसमें कोलंबो प्लान एक जो अदारा है उसका जो ड्रग अब्यूज़ प्रोग्राम है, ड्रग एडवाइजरी प्रोग्राम है, उन्होंने एक सर्टिफाइड डिग्री जारी की है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट में, और वो पाकिस्तान भी अब उस का हिस्सा बन चुका है। और हम जो फर्स्ट बैच के 11 प्रिवेंशन स्पेशलिस्ट हैं पूरे पाकिस्तान में जो जिन्होंने सर्टिफाइड ट्रेनिंग ली है। अब जो कोर्सेज हैं उसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जब आप प्रिवेंशन की बात करते हैं उसके बाद मैं जो हमारे इस वक्त रोज़मर्रा की जो हम फेस कर रहे हैं चीज़ें जिनका प्रिवेंशन के साथ गहरा ताल्लुक है वो किस तरह एड्रेस करेंगे। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उन चीज़ों को भी एड्रेस करूं, उन चीज़ों को भी बताऊं जो हमने तालीमी इदारों में की। इन प्रिवेंशन प्रोग्राम के तहत हमने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हमने वर्क प्लेस प्रोग्राम पे, हमने कम्युनिटी में, उसके बाद मीडिया के साथ इंटरेक्शन, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ, गवर्नमेंट इदारों के साथ किस तरह उनको यकजा किया। इस प्रिवेंशन जो स्पेशलिस्ट बनने के लिए आपको मुख्तलिफ जो कैरिकुलम है उनकी स्टडी करनी पड़ती है, उनका सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जिसमें पहला इंट्रोडक्शन टू प्रिवेंशन साइंस है, नंबर 2 फैमिली बेस्ड प्रिवेंशन है कि फैमिली को हम किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं, फैमिली के स्किल को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद स्कूल बेस्ड प्रिवेंशन प्रोग्राम है, यानी स्कूल की सेटिंग है, स्कूल में स्कूल का एनवायरनमेंट किस तरह होना चाहिए, टीचर का रोल किस तरह होना चाहिए, उसके बाद नॉन टीचिंग स्टाफ को किस तरह आप बेहतर तरबियत दे सकते हैं। प्रिवेंशन इन वर्क प्लेस प्रोग्राम, यानी आपकी लेबर में आपके जो ऑफिसेज हैं, उसके बाद आपके जो शॉप्स हैं, वहाँ पे जो आपकी काम करने वाले मैनेजर से लेकर लोअर स्टाफ, नॉन जो एजुकेशन स्टाफ है, उनको आप किस तरह ड्रग से दूर रख सकते हैं। इन्वायरमेंटल इंटरवेंशन, जो माहौल का एक असर है वो किस तरह, फिर उसके बाद एविडेंस बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन इसकी किस तरह हम कर सकते हैं, और उसके बाद है मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन इज द मेन पार्ट। इसी तरह और भी 2-3 और प्रोग्राम है जो प्रिवेंशन का एक पार्ट है। और ड्रग्स की जब हम बात करते हैं प्रिवेंशन में, तो एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो ड्रग की डेफिनेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक की गई वो यही है, दिस इज ए क्रॉनिक डिजीज, ब्रेन डिजीज, लॉन्ग लास्टिंग, मैनेजेबल बट नॉट क्योरेबल। हम लोगों को ये नहीं बताते, इस चीज़ से अवॉइड करते हैं कि ये क्योरेबल नहीं है, इसलिए कि लोगों की होप जो है वो बिल्कुल यानी उर्दू में आसान वर्ड में मैं ये कहूँगा कि ये एक ज़हनी बीमारी है, लंबे अरसे रहने वाली है, और इसका आप क्योर नहीं कर सकते, मैनेज कर सकते जिस तरह हम ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल करते हैं। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि रिलैप्स रेट हमारे यहाँ 100% है, पूरी दुनिया की तरह 95 to 100% रिलैप्स रेट है। एक मरतबा इलाज करवाते हैं, दूसरी मरतबा फिर, क्योंकि इसका ज़हन के साथ ताल्लुक है, हमारे यहाँ माहौल नहीं है, वो सिस्टम नहीं है, हम जो एक एडिक्ट है उसको वो चीज़ें नहीं दे सकते जो उसका माजी होता है, जिसकी वजह से वो दोबारा इस प्रॉब्लम में चला जाता है। ग्राउंड रियलिटी आज बड़ी टोटली डिफरेंट है। देखें, जो बुक्स की बातें हैं, किताबी बातें हैं, उनको इम्प्लीमेंट जब आप करते हैं ग्राउंड पे, तो उसके रिजल्ट जो हैं बड़े डिफरेंट निकलते हैं। जब हम मैं प्रिवेंशन में जो मेजर 3-4 चीज़ें हैं जिसमें पेरेंटिंग रोल है, पेरेंटिंग स्किल है, टीचिंग स्किल है और बेसिक लाइफ स्किल, इस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि बेसिक लाइफ का बराह रास्त ताल्लुक अपने स्टूडेंट के साथ है। हमने 2016 में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया लाहौर में, जिसमें तकरीबन 2700 के करीब तालीमी इदारों में हमने बच्चों को जनरल अवेयरनेस और बेसिक लाइफ स्किल यानी ज़िंदगी गुजारने की महारतों के बारे में तरबियत दी। ये वो प्रिवेंशन का एक फर्स्ट पार्ट है जिसमें आप बच्चों को ये बताते हैं, डायरेक्टली नहीं आप हम किसी को कहेंगे आप ड्रग यूज़ करते हैं आप इससे बाज आ जाएं। वो जो स्केरी टैक्टिक्स है ना, यानी उसमें बताते हैं आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, आप कब्र में चले जाएंगे, वो तो एक अलग इशू है। अब वो प्रिवेंशन कहती है कि आप उनको ज़िंदगी गुजारने की महारतें बताएं, यानी आपने अपने गुस्से पे किस तरह काबू पाना है, आपके दोस्त कौन से होने चाहिए, आपने ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है,
और दोस्तों में जब हम दोस्तों की बात करते हैं तो मैं अक्सर कहता हूं कि जितने भी यूथ है, जितने भी स्टूडेंट हैं, उनको चाहिए कि आप कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 दोस्त का इंतखाब करें, इससे ज्यादा आप एक्सीड ना करें। और उस फ्रेंड्स की, उन दोस्तों की जो मालूमात है, इंफॉर्मेशन है, वो आपके वालिदैन के पास, और उनकी इंफॉर्मेशन आपके वालिदैन के पास। टेलीफोन नंबर होना चाहिए, आपके वालिदैन की हिस्ट्री, आपके वालिद का बिजनेस क्या है, उसके वालिद का बिजनेस क्या है, वो क्या करते हैं, कहाँ रहता है, ये सारी चीजें आपके पेरेंट्स के पास जरूरी हैं। तो बेसिक लाइफ स्किल यानी जिंदगी गुजारने की महारतों के बारे में हमने 9th 10th ये कॉलेज स्टूडेंट एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, क्योंकि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का लेवल थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है, उनकी सोच में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, वो मेच्योरिटी में ज्यादा आगे चले जाते हैं। क्योंकि 13 साल से लेके 22 साल की एज, जिसे हम गोल्डन एंड प्राइम एज कहते हैं, ये वो एज है जिसमें फैसला साजी का अख्तियार जो है सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट या नौजवान अपने पास रखता है। आपने देखा होगा कई ऐसी मिसालें हैं, हजारों हैं, सैकड़ों नहीं हजारों मिसालें ऐसी हैं कि इस एज में बच्चे वालिदैन के साथ झगड़ते हैं, लड़ते हैं। मैं उसकी मिसाल देता हूँ, एक मोबाइल है, अगर आप किसी बच्चे और बच्ची से मोबाइल ले लें तो वो आपके साथ लड़ता और झगड़ता है, कहता है जी आपने मेरा क्यों मोबाइल छीना। वालिद या वालिदा या भाई कहता है कि आप मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो आगे वो कहता है आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले, मैं खुद। आप अपने दोस्तों पे ज्यादा इन्हिसार करते हैं, दोस्तों की बात को ज्यादा तरजीह देते हैं, उनको मानते हैं। इसी वजह से 80% जो भी केसेस हैं ड्रग एडिक्शन के, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के, वो पीयर प्रेशर की वजह से, दोस्तों की बुरी सोच। मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं आजकल 4-5 साल में, उसमें सबसे बड़ा जो मेन एलिमेंट है वो दोस्त ही हैं। जिससे पूछें आपने किस तरह शुरू किया, उसने कहा जी मैंने तो मेरा दोस्त शुरू करता था, उसने कहा था यार एक मरतबा इस कश को लगाओ और जब आप इसको लगाएंगे तो आप और दुनिया में चले जाएंगे। मैंने वो टेस्ट किया और मैं आहिस्ता आहिस्ता इसी में चीज में धंसता चला गया। यहाँ ये भी मैं बताना जरूरी समझता हूँ कि एडिक्शन में जब आप ड्रग्स की फर्स्ट डोज लेते हैं, जो प्लेयर आपको मिलता है पहली डोज में फर्स्ट स्टेज पे, चाहे वो चर्स का हो, चाहे वो आपको क्या कहते हैं हीरोइन का हो, चाहे वो आइस का हो, चाहे वो एस्टेसी LSD टैबलेट हो, वो आपको जब पहली डोज में प्लेयर और सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, वो आपको मरते दम तक नहीं मिलती। इसी वजह से आप इस डोज को बढ़ाते जाते हैं, और जब बढ़ाने के साथ साथ आपकी बॉडी का इन्हिसार जो है, आपकी बॉडी की डिपेंडेंसी है, वो उस पर मुंतकिल हो जाती है। आपका लेवल जो है इन्हिसार का बढ़ता जाता है, और जब आपका लेवल पूरा नहीं होगा आप डोज को बढ़ाते जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप क्रॉनिक एडिक्ट बन जाते हैं। तो बेसिक लाइफ स्किल में हम जब जिंदगी गुजारने की महारतें अच्छे तरीके से उनको एक्सरसाइज के जरिए बताते हैं, तो उसके बाद हम ड्रग्स की तरफ लेके आते हैं कि ये एक बुरी चीज है, इसको आप छोड़ना चाहिए। आपकी लाइफ पे इसका असर पड़ता है, आपकी फैमिली पे असर पड़ता है, आपकी एजुकेशन पे असर हो रहा है, आपके माहौल पे असर हो रहा है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी इससे क्लैश हो रही है। ये वो है जो जिंदगी गुजारने की महारतों की तरफ आप उसको लेके जाते हैं। उसके बाद अब इसी में प्रिवेंशन में पेरेंटिंग स्किल है कि पेरेंट्स का रोल क्या होना चाहिए। आजकल हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि मोस्टली पेरेंट अक्सर यही बात दोहराते हैं, जी हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम बच्चों को रोजी रोटी कमाएं या बच्चों के लिए उनके लिए खाना कमाएं, उनका पेट भरने के लिए, या बच्चों पे टाइम दें। तो आपने देखा होगा कि वालिदैन जब अपने बच्चों पे तवज्जो नहीं देते, वालिदैन टाइम नहीं है, काम करते हैं, सुबह चले जाते हैं, शाम को वापस। मैं तो ऐसे वालिदैन को जानता हूँ जो अपर क्लास के हैं, जो अपने बच्चों को एक महीना नहीं मिलते। बाद वालिदैन ऐसे हैं जो बाहर रहते हैं बिजनेस में, अपने बच्चों को टाइम नहीं देते। और पेरेंट की पेरेंटिंग स्किल में ये बात बेहतर तरीके से बताई गई है कि एक वालिद या वालिदा या फैमिली का रोल है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वालिदैन को अथॉरिटेरियन रोल नहीं रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब आपका बच्चा एडिक्ट बन जाता है, जब आपका बच्चा
नशा शुरू कर देता है, बुरी इल्लत में का शिकार हो जाता है बच्चा और बच्ची, तो उस वक्त वालिदैन के रवैयों में डिफरेंट तब्दीलियां आनी चाहिए। मैं अक्सर वालिदैन की जब काउंसलिंग करता हूँ, एडिक्शन सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर जो शख्स है उससे ज्यादा परेशान उसकी फैमिली होती है, उसकी माँ, उसका वालिद, उसका भाई, वो ज्यादा परेशान होते हैं। जब आप अपनी जो पेरेंटिंग स्किल्स हैं उसको लूज कर देते हैं तो फिर घर में माहौल जो है वो खराब होता है, अक्सर लड़ाई है। क्योंकि एक एडिक्ट जो है उसने तो आपने पैसों की डिमांड करनी है। पहले वालिदैन अपनी इज्जत की खातर बच्चे को, वालदा जो होती है वो अपनी जेब से खामोशी के साथ बच्चे को पैसे देती रहती है ताकि ये किसी के आगे हाथ ना फैलाए। फिर वो वालिद देता रहता है, एक वक्त वो आता है वालिदैन उसको पैसे नहीं देते, वो आप रिलेटिव से लेता है, रिश्तेदारों से लेता है, दोस्तों से लेता है। फिर वो भी जब नहीं देते तो वो चोरी और छोटी छोटी चीजें घरों से बेचता है। उसके बाद जब वो भी मामला खत्म हो जाता है तो फिर वो सड़कों, चौक और चौराहों पे आ जाता है। तो वालिदैन के रवैयों में तब्दीली इसलिए जरूरी है कि जब आपको पता चल जाए कि आपका बच्चा एक क्रॉनिक एडिक्ट है, वो इस फेज से इतनी जल्दी बाहर नहीं निकल सकता, तो उसके लिए बेहतर है कि आप अपने रवैयों में तब्दीली लेके आएं। मैं अक्सर पेरेंट्स को कहता हूं कि आपने अपने बच्चों के साथ कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आपने अच्छे तरीके से चीजों को हैंडल करना है। आप ये समझें ये एक बीमारी है, ये एक बीमारी है, ये जो बेसिकली ये बीमारी जो आदत से शुरू हो जाती है। एडिक्शन इज नॉट ए डिजीज, एडिक्शन इज ए हैबिट जो आहिस्ता आहिस्ता एक बीमारी में बदल जाती है। एक और बात बताना चाहता हूं कि पेरेंटिंग स्किल में जो फैमिली का पार्ट है उसमें सबसे ज्यादा जो अगर किसी सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के साथ जो सबसे ज्यादा उसकी केयर करने वाला या उसके साथ ज्यादा अटैचमेंट, उसके पॉजिटिव उसकी बातों को सोचने वाला उसकी सबसे बड़ी उसकी बहन होती है घर में, जो उसकी सबसे ज्यादा, अगर उसको घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो सबसे पहले आगे आती है। अगर माँ पैसे नहीं देती, वालिद पैसे नहीं देता तो खामोशी के साथ वो पैसे देती है, इसलिए कि घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, ताकि ये अपना नशा पूरा करे। तो पेरेंटिंग स्किल में सबसे बड़ी बात यह है कि पेरेंट को अपने रवैयों में तब्दीली लाने की जरूरत है। अब आ जाता है रोल टीचर का, यानी टीचर का रोल क्या है, टीचिंग स्किल जो है। आज हमने देखा है कि हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि मेरा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ इंटरेक्शन बहुत रहता है, हमारे यहाँ जो एडिक्शन है वो जो ज़्यादा हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के जो तालीमी इदारे उनमें बहुत कम है, और जो प्राइवेट सेक्टर में वो बहुत ज़्यादा है। लाहौर की यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनका अगर मैं नाम लूँ, शोर डालूँ मीडिया में, मीडिया वाले अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि यार हमें बताएं तो सही, लेकिन मैं नहीं बताता, मेरे दिल में, मेरे जहन में वो राज है। इसलिए अगर मैं बताऊं तो वालिदैन अपने बच्चों को यूनिवर्सिटियों में पढ़ने ना भेजें कि जी हमारे यहाँ नशा होता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, पिछले वीक की। एक रिटायर कर्नल साहब है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं एक यूनिवर्सिटी प्राइवेट में दाखिला लेने के लिए बच्ची के साथ गया, तो मैंने माहौल को देखा। जब माहौल को देखा तो मैं बड़ा परेशान हुआ, तो मैं वहाँ एक VIS डिपार्टमेंट है उनके हेड के पास चला गया। उनको मैंने कहा कि जनाब आप तो दावे करते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में हमारा माहौल बड़ा अच्छा है, तो मैं तो जो बाहर देख के आऊँ, मुझे तो डर है कि मैं जितना भी कंट्रोल करूंगा अपनी बच्ची को, लेकिन वो इस माहौल में आके कंट्रोल नहीं होगी। तो कहने का मकसद ये है कि आप एजुकेशन के साथ जो तरबियत का फुकदान है उसमें हमारे यहाँ बहुत सारी कमी है। आप तरबियत नहीं करते बच्चों की। जब आप तरबियत करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन जो रिजल्ट निकलेगा। अब टीचिंग स्किल में टीचर का अथॉरिटेरियन रोल है, वो किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। अब स्कूल का जो टीचर है, जो 9th and 10th के बच्चों, क्योंकि हम सीनियर स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, अब गवर्नमेंट सेक्टर में और जो प्राइवेट सेक्टर के स्टूडेंट हैं 9th and 10th के O लेवल के, उनके रवैये में, उनके टीचर के रवैये में बहुत फर्क है। इसी तरह आप गवर्नमेंट सेक्टर में जो कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं और प्राइवेट सेक्टर में उनके रवैयों में डिफरेंट फर्क है। इसी तरह यूनिवर्सिटी लेवल में आ जाए, उनके रवैयों में बड़ा डिफरेंट फर्क है। अब जब
टीचर की टीचिंग स्किल, टीचर अपने अंदर वो स्किल डॉक्टर, टीचर का रवैया बहुत अच्छा होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, क्योंकि घर के बाद बच्चे का जो इंटरेक्शन है वो अपने टीचर के साथ, टीचर को अपना वो मेंटोर समझता है, टीचर को अपनी वो हर चीज बात बताने की कोशिश भी करता है। लेकिन जब टीचर के अंदर वो सलाहियतें नहीं हैं, टीचर वो चीज़ों को फेस ही नहीं कर सकता, तो मैं समझता हूँ कि फिर रिजल्ट जो है वो नेगेटिव निकलते हैं। हमने इसी सिलसिले में हमने टीचिंग स्किल के बारे में ट्रेनिंग शुरू करवाई, मुख्तलिफ फोकल पर्सन बनाए हमने। पिछली गवर्नमेंट में 11,000 मुख्तलिफ कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी में 10,000 स्कूलों के तकरीबन 53 यूनिवर्सिटी हैं पंजाब की, उनमें, और उसके बाद तकरीबन 900 के करीब कॉलेजेस हैं जहां हमने फोकल पर्सन बनाए, और उन फोकल पर्सन में की हमने बेसिक ट्रेनिंग करवाई, और वही जो टीचर के कन्वेंशन हमने आपकी यूनिवर्सिटी में एनुअल रखे। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि टीचर को इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है प्रिवेंशन के मेयार हैं उनके बारे में आगाह किया जाए, इस तरह कि वो बच्चे को किस तरह गाइड करेगा, उनको ड्रग्स के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ड्रग्स के नामों का आना चाहिए, बच्चे के बिहेवियर की चेंजिंग जो है उनके बारे में उसको आगाही हो, वो अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर किस तरह माहौल को बेहतर बना सकता है, इंस्टीट्यूशन के अंदर नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ किस तरह उसके इंटरेक्शन हो सकता है। ये वो बहुत सारी चीजें थी जो हमने शुरू करवाई हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि 100% तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत से तालीमी इदारों के साथ अभी भी हमारा इंटरेक्शन है, जिस तरह आपकी यूनिवर्सिटी के साथ है और इदारों के साथ है, वो हमारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, हम उनको गाइडलाइन देते हैं। कोई भी मुश्किल मसाइल, परेशानियां, ऐसे केसेस निकलते हैं, हम उनके हल तलाश करते हैं। ये तो पेरेंटिंग, टीचिंग और उसके बाद बेसिक लाइफ स्किल यानी जिंदगी गुजारने की महारतें थी। उसके बाद प्रिवेंशन में एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम मैसेज क्या डिलीवर कर रहे हैं, मीडिया का रोल क्या है। मैंने आपको कहा कि आज प्रिवेंशन में ये बात तय है कि आप स्केरी चीजें नहीं दिखाएंगे, आप प्यार की बात करेंगे, आप बेसिक जिंदगी गुजारने की बात करेंगे, पॉजिटिव मैसेज की बात करेंगे। आपने नेगेटिविटी को जब पहले ही स्टार्ट कर दिया, बता दिया, तो आपका रिजल्ट है वो बेहतर नहीं होगा। और इसके साथ साथ हमने टीचर जो खासकर मीडिया के लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, उनकी ट्रेनिंग करवाई है, उनको बताया है कि किस तरह आपने पॉजिटिव मैसेज डिलीवर करना है, किस तरह आपने राइटिंग, जब न्यूज़ आपने डेवलप करनी है, न्यूज़ बनानी है, उसमें कौन सी चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, पॉजिटिविटी उसमें होनी चाहिए। ये बेसिकली सारी चीज़ें प्रिवेंशन का एक पार्ट है। अब मैं आता हूँ इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन क्या है। लेटेस्ट सिचुएशन जो हमारे लाहौर की मैं आपको बताना चाहता हूँ या दूसरे शहरों की, वो इस वक्त बड़ी आप कह सकते हैं इतनी अच्छी नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। लाहौर में इस वक्त आप देख रहे हैं, हमारी हर साल की जो रिपोर्ट आती है 2017, 2016, 2018 की रिपोर्ट्स में लाहौर में तकरीबन 80 मकामात थे जहां लोग घरों से भागे हुए होमलेस पीपल जो मनशियात का इस्तेमाल करते थे, सड़कों, बागों, फुटपाथों, पार्कों में बैठ के। 2019 की रिपोर्ट आई, 2020 की आई है, उसमें 120 मकामात डिक्लेयर किए हमने, जिसमें जहां पर आज भी घरों से भागे हुए जो तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोग हैं जो मनशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बदकिस्मती से ये वो लोग हैं जिनका ये ना वापस जाते हैं। जिस तरह मैंने पहले स्टार्ट में कहा था कि फैमिली में जब आपको आपके पास वो चीज़ें सारी ख़त्म हो जाती हैं, बच्चे को दुत्कार दिया जाता है, क्योंकि देखिए जो एक एडिक्ट है वो पेशेंट है, मरीज है, क्लाइंट है, और हमने अभी तक इन चीज़ों को फॉलो ही नहीं किया, हमने उनको स्टिग्माटाइज किया है। मैं आज भी हर एक को कहता हूँ कि ये जो ड्रग एडिक्ट्स हैं ये मरीज हैं, ये क्लाइंट हैं, ये पेशेंट हैं, ये इनको आप मत किसी और नाम से या स्टिग्माटाइज करें। तो हमने इनके लिए जो बहुत से काम किए हैं वो मैं बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के दरमियान हमारे यहाँ कोई डाटा नहीं था कि सड़कों, बागों, पार्कों में होमलेस ड्रग एडिक्ट कितने इस दुनिया से चले जाते हैं, बेनाम, गुमनाम, जिनको बगैर नाम के दफनाया जाता है। हमने मार्च का जो मिड है 10 दिन है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये दिसंबर तक हमने डाटा इकट्ठा किया है।
और उसके बाद जनवरी और फरवरी का तकरीबन 417 लोग हैं जो लाहौर के फुटपाथों, सड़कों, बागों, पार्कों में, जो हमारे पास डाटा है, जो बेनाम दफनाए गए हैं। और इसका डाटा जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा, ईदी फाउंडेशन, लाहौर पुलिस की एफआईआर की कॉपी, डेड हाउस और हमारी जो अपनी टीम है, वो मैं बता दूं कि इसको किस तरह दफनाया जाता है। जब सड़क, फुटपाथ और बागों में जब कोई डेड बॉडी मिलती है, उसको पहले डेड हाउस मुंतकिल किया जाता है, उसके बाद उसका फ्रांजिक किया जाता है, उसका कोशिश की जाती है कि नादरा के जरिए उसका वेरिफिकेशन हो, उसकी ट्री मिले ताकि उसकी फैमिली के साथ रब्ता किया जाए। जब फैमिली के साथ रब्ता नहीं होता तो फिर उसकी एफआईआर की कॉपी और उसकी एक पिक्चर उसकी बॉडी के साथ, कफन के साथ रख के कब्र में दफना दी जाती है, ताकि ये अमानतन इसको दफनाया जाता है। और लाहौर में एवरेज जो मंथली है वो तकरीबन कोई 32 से लेके 40 तक के लोग हैं, कभी बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। इसके लिए हमने डाटा इकट्ठा करना शुरू किया। उसके बाद बागों, पार्कों, सड़कों पे जो एडिक्ट बैठे हैं, इनके लिए खुराक और पानी का इंतजाम किया, क्योंकि इनको देखा ये गया है ये खुराक और पानी ना होने की वजह से इनकी अमवात हुई है। अमवात की रीजन जो 4 या 5 हैं। एक ओवरडोज, यानी आप ड्रग का ज्यादा इस्तेमाल कर गए हैं। एक, जिस दिन आपको नहीं मिली ड्रग्स, उसके बाद आपकी हाइजीनिक कंडीशन खराब है। और चौथा जो आपको सर्दी की वजह से अमवात ज्यादा हो रही हैं। तो ये 4-5 रीजन है जिसकी वजह से आपकी जो सड़कों, बागों, पार्कों में जो ड्रग एडिक्ट्स घरों से भागे उनकी अमवात। हमने इनके हाइजीनिक कंडीशन को के लिए हमने इनके कपड़े चेंज करने शुरू किए। हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार हम लाहौर के मुख्तलिफ स्पॉट पे घरों से इकट्ठे किए हुए जो कपड़े हैं वो इनको देते हैं ताकि ये अपने कपड़े चेंज करें। क्योंकि आप बिलीव करें, जो फुटपाथ पे बैठा एक नशा कर रहा है, आप उसके करीब जाना पसंद नहीं करते। उनके जिस्म से इतनी बू आती है, वो 5 से 6 महीने अपने कपड़ों को चेंज नहीं करते, वो नहाते नहीं हैं। आप उनकी हाइजीनिक कंडीशन देखें तो आप परेशान हो जाएंगी। फिर एक सड़क पे बैठा जो एडिक्ट है, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है, वो तकरीबन 6 से 7 इंजेक्शन फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के लगाता है अपनी बॉडी के लेवल को मेंटेन करने के लिए, और एक जो है वो हीरोइन का इंजेक्शन पानी में मिक्स करके लगाता है। तो हमने इनके लिए आवाज उठाई है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि किसी ना किसी तरीके से बेहतरी के आसार जो नजर आएंगे। हमारी तरफ से जो कोशिश है वो हो रही है, और मैं इस प्रोग्राम की विसासत से मैडम से भी रिक्वेस्ट करूंगा, और जो हमारी अपनी टॉप मैनेजमेंट इस वक्त मेरी बातें सुन रही हैं, कि यहाँ पे आप एक कैंप ऑर्गेनाइज करें जहाँ पे जो घरों में यूज कपड़े हैं जो आप इस्तेमाल नहीं करते, आपके भाई के, आपके वालिद के हैं, जो अक्सर औरतें गली मोहल्लों में देखा होगा कि वो जब बर्तन बेचने वाला आता है वो बर्तन ले लेती है कपड़े दे के। हमने वो कपड़े इकट्ठे किए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कपड़े हमें मिलें ताकि हम इनकी हाइजीनिक कंडीशन चेंज कर लिए। और दूसरा ये है कि हमने, जिस तरह मैंने पहले कहा कि लॉकडाउन के दौरान हमने फूड प्रोग्राम और पानी का शुरू किया। एक हाफ मिनरल वाटर की बोतल होती है और साथ एक फूड का पैकेट होता है, जो हम इनको उसमें चावल वगैरह वो हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो भी उसके लिए हमें ड्राई जो राशन की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी ज़रूरियात के मुताबिक उनको हफ्ते में 2 या 3 मरतबा जो कुकिंग करके और पैक करके वो डिस्ट्रीब्यूट करें। उसके साथ साथ फिर मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि हमने पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट में केस इस वक्त ज़ेर समाअत हैं, और उनकी आइंदा 4 फरवरी को हियरिंग है, और ये हियरिंग कोरोना के बाद तकरीबन 11 महीने के बाद हो रही है। हमने पंजाब के तमाम तालीमी इदारों में हेल्थ प्रोफाइल का जो सिस्टम है वो शुरू करवाया कोर्ट के ज़रिए। हेल्थ प्रोफाइल जो है, बेसिकली आपने अक्सर सुना होगा मीडिया में कि बच्चों का ब्लड टेस्ट होना चाहिए, और उसके बाद बच्चों का यूरिन का टेस्ट होना चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं, लॉ है, आप विदाउट एनी परमिशन, किसी परमिशन के बगैर आप किसी का ब्लड नहीं ले सकते, ना ही उसका यूरिन लेके उसका टेस्ट कर सकते हैं। फिर पंजाब गवर्नमेंट ने खुद ही साइकियाट्रिस्ट डिपार्टमेंट 2 हैं
जनरल हॉस्पिटल और मियो हॉस्पिटल के जो हेड है उन्होंने वो परफार्मा तैयार किया जिसको अप्रूव किया गया है। उसके तहत पंजाब के तमाम तालीमी इदारों तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख के स्टूडेंट जो है उनका हेल्थ प्रोफाइल शुरू किया। लेकिन बदकिस्मती से मुझे लाहौर हाई कोर्ट ने नॉमिनेट किया है कि मैं तालीमी इदारों का रैंडमली विजिट करूंगा, चेक करूंगा और जेलों का। लेकिन मैं आपको यहाँ बताते हुए क्या मैं शर्म भी महसूस करता हूँ कि बहुत से तालीमी इदारों के सरबराह जो 80% जो फेक जिन्होंने वो रिपोर्टें तैयार की और वो मैंने अदालत में रिपोर्ट जमा करवाई है, इंशाल्लाह इस पे बहस होगी कि देखें आप बच्चे का हेल्थ प्रोफाइल नहीं बना रहे। हेल्थ प्रोफाइल में ऐसी कोई चीज भी नहीं, जनरल एक क्वेश्चनर है जिसको आपने फिल करना है साइकियाट्रिस्ट की मदद के साथ। उसमें हमने मुख्तलिफ तालीमी इदारों में एज एक टीम वर्क के साथ शुरू किया है और अल्लाह का शुक्र है उसमें हमें बहुत सी चीज़ें रिजल्ट मिले हैं। हम डाटा भी इकट्ठा कर रहे हैं। तो इस हेल्थ प्रोफाइल को मेरा ख्याल अगले महीने से तमाम तालीमी इदारे जिनके रह गए हैं, जो नए बच्चे आए हैं, उनका मुकम्मल किया जाएगा। उसके साथ साथ फिर जेल के अंदर जो रिफॉर्म शुरू की गई हैं, जेल के अंदर जो खासकर अडयाला जेल में और अडयाला जेल के साथ कोटलखपा जेल में 20-20 बेड का हॉस्पिटल ड्रग एडिक्ट के लिए और 5 बेड का कसूर में, मैंने कसूर डिस्ट्रिक्ट जेल, कैंप जेल और कोटलखपा जेल का विजिट किया कोरोना से पहले बाय द डायरेक्शन ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट। वहाँ हमने बड़ी चीज़ों की जो है चीज़ों को कोर्ट के जरिए इंट्रोड्यूस कराया। सबसे बड़ी बात यह है कि हर जेल के अंदर जाने वाला नया कैदी उसका ड्रग टेस्ट प्लाज्मी करार दे दिया गया। उसके लिए 40 मिलियन की पंजाब गवर्नमेंट ने किटें खरीद के जुलाई में दी हैं तमाम जेलों के अंदर और अब उसका बजट उन्होंने बढ़ाया है। उसके बाद 40,000 कैदियों का शनाख्ती कार्ड नहीं था जेलों के अंदर, वो शुरू करवाया। ये वो बहुत सी वो चीज़ें हैं जो हमने प्रिवेंशन के जुमरे में कोर्ट की डायरेक्शन से, और अब सड़कों बागों पार्कों में जो पड़े हैं इनके लिए जो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी कुछ भी नहीं हुआ और लाहौर में इस वक्त 10,000 से प्लस जो एडिक्ट बैठी हैं। एक और बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ यहाँ पे कि नशा करने के जो रुझानात हैं उसमें नुमाया फ़र्क आ गया। लाहौर में मैं नहर को 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। लाहौर शहर को, नहर के जो उस साइड पे लोग हैं जिसमें बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, जिसमें बहरिया है, वलेंशिया है, वाबडा टाउन है, PIA सोसाइटी है, उसके बाद और बहुत से EME सोसाइटी, जुबली टाउन, उसके बाद डिफेंस के सारे फेसेस हैं, बरकी रोड पे, रायवंड रोड पे जितनी सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर नशा करने के रुझानात डिफरेंट हैं। वहाँ अपर क्लास के बच्चे, उनमें नशे की जो वबा है इस वक्त वो ज़्यादा क्रिस्टलाइज है, हैश, कोकीन, LSD, एस्टेसी टैबलेट वो ज़्यादा कर रहे हैं। और जो नहर इस साइड पे हैं मिडिल क्लास और पुअर क्लास के बच्चे, उनमें ज़्यादा गुटखा, नस्वार, पान, शराब, चर्स और उसके बाद ये जो वीलो आ गई है अब इसमें ये बहुत ज़्यादा आम हो रही है। तो हमारी कोशिश ये है कि तालीमी इदारों के साथ कम्युनिटी में, पेरेंट्स में, टीचर में हम एक ऐसी अवेयरनेस डिज़ाइन करें, कंपेन जो प्रिवेंशन को मैच करती हो, जो एविडेंस बेस्ड हो। देखें, आपने लेक्चर दिया, तकरीर की, सारा कुछ मुकम्मल कर लिया, उसके बाद आपके पास क्या है? आपके पास एक क्लास से बच्चा उठ के आता है या बच्ची आती है, वो कहती है जी मेरे वालिद या मेरा भाई नशा करता है, मुझे उसकी हेल्प चाहिए। जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, हम उसकी हेल्प नहीं कर सकते। उसके लिए लाहौर में गवर्नमेंट के इस वक्त 5 हॉस्पिटल हैं। एक हॉस्पिटल है मेंटल हॉस्पिटल जिसमें 100 बेड है, और उसके बाद मियो हॉस्पिटल जहाँ 15 बेड हैं, सर्विस हॉस्पिटल गंगाराम, जिना हॉस्पिटल, वहाँ 10-10 बेड हैं, साइकियाट्री वार्ड के साथ मर्ज हैं। लेकिन इस वक्त जो सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट की जो सर्विस दे रहा है वो मेंटल हॉस्पिटल दे रहा है ड्रग एडिक्ट्स को, लेकिन वो भी नाकाफी है। लाहौर की 1 करोड़ 20 लाख की आबादी में आप देखें 100 बेड अवेलेबल हैं, तो लाहौर से बाहर का शहर को प्रेशर है। लाहौर में इस वक्त जो प्राइवेट सेक्टर में तकरीबन 30 से ज़्यादा ट्रीटमेंट सेंटर हैं। महीने का जो प्राइवेट सेक्टर में 30,000 से इलाज शुरू होता है, 5 लाख रुपए तक मंथली वो वालिदैन पे करते हैं। अपर क्लास के जो वालिदैन हैं, क्योंकि उनके बच्चों का रहने का अंदाज डिफरेंट है,
वो अपने बच्चों के कमरे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में उसी तरह के पसंद करते हैं। वो तकरीबन 5 लाख रुपया महीना वो पे करते हैं, और जो गरीब मिडिल क्लास के पेरेंट्स हैं वो तकरीबन उनकी जो पावर ऑफ एक्सपेंडिचर है वो तकरीबन 30,000 से शुरू होते हैं। तो हमारी कोशिश ये है मेरी कि गवर्नमेंट सेक्टर में हॉस्पिटल बढ़ाए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उनमें बेड के इजाफा किया जाए। अगर 100 बेड हैं तो 100 बेड और बढ़ा दिए जाएं। मुख्तलिफ हॉस्पिटल में अगर 10 बेड हैं तो 10 बेड का और इजाफा कर दिया जाए, ताकि जो एक बर्डन है मुख्तलिफ शहरों से या अपने लाहौर का, उसमें हम बेहतरी और कमी ला सकें। ये वो चीज़ें हैं जो प्रिवेंशन में हम काम कर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि आपकी जो ब्लेसिंग और आपके साथ इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इंटरेक्शन रहेगा, तो हम चीज़ें बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। और ये मेरी चंद गुजारिशात थी, और रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमें सबको मिलके, चाहे वो वालिद हो, वालदा हो, भाई हो, बहन हो, टीचर हो, जर्नलिस्ट हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, हमारी सबकी इक्वल जिम्मेदारी है कि हमने इस माशरे को महफूज बनाना है उस चीज़ से जो चीज़ बड़ी तेज़ी के साथ हमारे निज़ाम को ख़राब कर रही है, हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर रही है, और हमारे सिस्टम को ख़राब कर रही है, हमारे माहौल को ख़राब कर रही है, हमारी नई नस्ल के फ्यूचर को ख़राब कर रही है। हमने उससे महफूज रखना है। अल्लाह ताला हम सबको मैं अक्सर कहता हूँ कि जो दुश्मन है ना हमारा, जिससे हम बात भी नहीं करते, उस घर में भी ये प्रॉब्लम ना हो। ये वबा जो है ना अमीर का घर देखती है ना गरीब का घर देखती है, ये अमीर के और गरीब के दोनों के सुकून को तबाह कर देती है। अल्लाह ताला हमें इस वबा से महफूज रखे, हम सबको महफूज रखे। जिनके बच्चे इस वबा में मुब्तला है उनके वालिदैन को सुकून नसीब फरमाए, उन बच्चों को इस नशे से मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए कि उस वबा से निकलें। ये मेरी चंद गुजारिशात थी। बाकी मैं डॉक्टर साहब मैडम बुशरा से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी थोड़ा सा अपने ख्यालात का इजहार करें। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत तफसील से हमें बताया। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे ये महसूस हुआ है कि ये तो यकीनन एक जहाद है जो आप कर रहे हैं इस मेनेस के ख़िलाफ़, और ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है माशरे की, ये ड्रग अब्यूज़ की वबा जो फैली हुई है। और उसके अलावा आपकी अप्रोच में जो बहुत ही अच्छी चीज़ है वो ये है, बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जिनमें ये भी है कि आपकी बहुत ब्रॉड अप्रोच है, यानी आप इसको इतने एंगल्स से टैकल करना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को भी स्टूडेंट्स को भी शामिल किया जाए। उसके अलावा ये कि टीचर्स, पेरेंट्स, प्रिजन्स में आप जा रहे हैं, स्ट्रीट्स पे जो होमलेस ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको भी, और फिर ये कि आपका सिर्फ फोकस ड्रग यूज़ प्रिवेंशन पर नहीं है, बल्कि जैसे आपने कहा कि उनको कपड़े दिए जाते हैं और फूड और वाटर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये आप बहुत सतह पर कर रहे हैं एफर्ट, जो कि बहुत कमेंडेबल है। और ये है कि यकीनन इसमें अल्लाह ताला आपको बहुत अजर भी दे, आपने इतनी जो दुआएं की हैं वो कबूल हों। और हमारा भी इसमें रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ जिस तरह से कोलैबोरेट आपके साथ कर सकती हैं, बहुत बेहतर तरीके से काम हो सकता है। और उसमें ये कि हमारा हेल्थ साइकोलॉजी का प्रोग्राम है, और हमारा तो स्पेशल फोकस इसके ऊपर है, प्रिवेंशन के ऊपर, डिसऑर्डर्स की प्रिवेंशन भी, और सब्सटेंस यूज़ और डिसेबिलिटी की प्रिवेंशन। तो डेफिनेटली हमारे यहाँ के ग्रेजुएट्स और स्टूडेंट्स इसमें बहुत रोल प्ले कर सकते हैं। इंटर्नशिप्स हो सकती हैं, प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक्टिव सिटीजन्स प्रोग्राम भी है, उसके प्रोजेक्ट्स भी इसके लिए हो सकते हैं। सो कोलैबोरेशन इज पॉसिबल ऑन अ नंबर ऑफ डिफरेंट लेवल्स, एंड वी शुड डेफिनेटली डू दिस, बिकॉज दिस इज दिस इज अ प्रॉब्लम जो कि हम सब की है, ये किसी एक पर्सन की नहीं है। हमने इसमें अपना रोल अदा करना है। सर अभी वीसी साहिबा शायद हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर लें, उतनी देर में मैं सोच रही हूँ कि अगर हम ऑडियंस से एक दो क्वेश्चंस ले लें। जी बिल्कुल, क्वेश्चन ले ले, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी बिल्कुल लीजिए, आमना सवाल लीजिए जी प्लीज।
स्टूडेंट्स या जो भी अटेंडीज हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड. अस्सलाम वालेकुम मैम, आई हैव अ क्वेश्चन. जी, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए पहले. माय नेम इज मोहम्मदा एंड आई एम एमए साइकोलॉजी स्टूडेंट इन एलसीडब्ल्यू. सर, जी आई हैव मोहम्मद. अ क्वेश्चन. सर, ये जो वेलो निकोटीन पैचेस हैं, ये किस हद तक एडिक्टिव हैं? आप अगर इसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये तो पब्लिकली इसको एडवर्टाइज भी किया जा रहा है. बहुत अच्छा सवाल है. देखिए, हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जब चीज़ें बढ़ जाती है ना, तो उसके बाद हम ना उसकी तरफ आते हैं. आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. देखिए, अल्लाह ताला हर बंदे से कोई ना कोई काम लेता है. मैं आपके सामने हूँ जिसने पूरे पाकिस्तान में शीशा कैफों को बंद करवाया. मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से केस जीता, लाहौर हाई कोर्ट से जीता. आज अल्लाह का शुक्र है कि हिडन शीशा कैफे जरूर है, लेकिन उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं. दोबारा मैं कोर्ट में जा रहा हूँ और शीशे की इंपोर्ट पे भी पाबंदी लगाई, लेकिन हमारे यहाँ कानून की इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं. अब ये जो वीलो आई है, अब वीलो के ऊपर क्लियर लिखा है कि ये एडिक्टिव है. आप अगर इसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं तो आप इसके फिर वापस नहीं आ सकते, यानी आप इस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे ना. और वीलो के लिए मैंने मुख्तलिफ जो मिनिस्ट्रीज है, हमारी डिपार्टमेंट है, उनको लेटर लिखे हैं कि इसके बारे में, क्योंकि इसके ये ना तो इसमें लिखा है कि ये कहाँ की तैयार की हुई है, ये सिर्फ लिखा है इसके ऊपर कि ये मेड ऑफ यूरोप है. और इसके भी 3 लेवल है. एक इसका लेवल कम है, इसके पावर कम है. उसके बाद नंबर 2 पे पावर ज्यादा है, नंबर 3 पे डिफरेंट इसके वो क्या कहते हैं इसके लेवल है. तो ये मार्केट में तो अभी एज ए एम्बेसडर के तौर पर हमारे यूथ को इस्तेमाल किया जा रहा है. यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और बाद बड़े स्टोरों में भी ये मिल रही है. तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि ये इसके लिए भी एक मौसर जो स्टेप उठाया जाएगा. और अभी जो 3 तारीख को हेयरिंग हो रही है लाहौर हाई कोर्ट में, तो उसमें भी मैं ये बात उठाऊंगा कि देखिए जी, एक नई चीज़ आ गई है, ये फैल चुकी है, और ये इसके हल के लिए कोई ना कोई, इसको बैन करने के लिए कोई ना कोई चीज़ बनाई जाए. जी, थैंक यू सर. उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए. मेरा सवाल तो नहीं है जुल्फ़िकार हुसैन साहब, मेरा सिर्फ एक कमेंट है कि आप यकीनन एक सदका जारिया है जो आप मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी को इस्तेमाल कर रहे हैं. आप साइमल्टेनियसली पूरी कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, पेरेंट्स को कर रहे हैं, पीयर्स को कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के, टीचर्स को कर रहे हैं, और वो सारे एलिमेंट्स जो हमारे रिलीजियस पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आप सबको ऑन बोर्ड ले रहे हैं. और आप सिर्फ प्रिवेंशन पे नहीं सर, आप तो बहुत आगे तक जा रहे हैं, जिसमें रिहेबिलिटेशन भी है. और वी आर ग्लैड दैट यू आर कॉन्स्टेंटली taking applied psychology department, health psychology students into the loop, because I have my firm faith that it is going to be the students who are going to bring the real change in society. तो यकीनन आप एक बहुत बड़ा जिहाद है जो आप कैरी ऑन करें, और आपकी ये मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी जो है, इट इज रिमार्केबल, because you are including and involving each and every segment of the society to play their role, because isolation में तो कुछ नहीं होगा जब तक हम integrative approach पे नहीं जाएंगे. So I have simply this huge appreciation for you, sir, and the department. I ensure you, my complete faculty and students will be in touch with you in developing. जो अभी थोड़ी देर पहले आप बहुत सारे प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, we are actively going to be with you. ये मेरा सवाल नहीं था, बस कमेंट नहीं, मैं आपके कमेंट्स की जनाब पहले भी कदर करता हूँ. आप पहले भी बड़ा, अब भी मैं वो कदर करता हूँ आपके रिमार्क्स की. मैं मैडम अक्सर एक मिसाल देता हूँ, पंजाबी की एक मिसाल है.
बच्चियां सो रही के वो अगर गद्दे के ऊपर आप किताबें लाद देना तो जब उसकी स्टडी उसका अल्लाह का शुक्र है कि मैंने तकरीबन हर फील्ड को टच किया है और मैंने उस फील्ड में पहले मैं काम किया है, फिर मैं बात बताता हूँ। और देखें, प्रैक्टिकल और थ्योरी पढ़ना और चीज़ है। जब आप चीज़ों को चैनलाइज कर देखें, वीलू का अभी तक ये वीलू किसी को नहीं पता, वो ठीक है मार्केट में आ रही है, लेकिन हमने इसको पकड़ा है, अभी पकड़ के अब इसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे। अभी जो शीशा कैफे बंद थे, हिडन अब चल रहे हैं बाज, वो मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मीटिंग भी की है, वो मेरे अभी 3-4 कैफे बंद भी हुए हैं। अब कैफों में बच्चे और बच्चियां करते क्या हैं, देखें हमारी लिमिटेशन बड़ी हो गई है। हम कैफे में जाते हैं, शीशे में, क्या कभी आपने जो गांव देहातों में रहने वाले हैं, मैंने अपनी नानी मेरी यहाँ लाहौर में हुक्का पीती थी, मैं उसका हुक्का खुद ताज़ा करता था, पानी डालते थे सुराई में, हुक्के को धो के सारा कुछ करके चिलम पे आग। अब यहाँ करते हैं सुराई में पानी की जगह शराब डालते हैं, चिलम के ऊपर फ्लेवर के साथ चर्च रखते हैं और साथ 81 डेजिपाम के इंजेक्शन लगाते हैं। तो आप मेरी देखें ये कहाँ का ये हमारा उसमें बच्चे तो बच्चे, बच्चियां भी इन्वॉल्व हैं, सारी जो अपर क्लास की बच्चियां हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। अब एक और बात मैं भूल गया जो मैं कहना चाहता था कि इस कैंपेन से, इस अवेयरनेस कैंपेन से फायदे बहुत ज्यादा हुए हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर आपने कंट्रोल कर लिया। अब जो प्राइवेट सेक्टर के बच्चे और बच्चियां पता क्या करते हैं, क्रीम और उबर मंगा ली किराए पे, 500-500 रुपये पूल कर लिया। पूल करने के बाद आपने जब 2 घंटे, 1 घंटा, 1.5 आपका पीरियड फारग है, आपने वो 2000 रुपया उस टैक्सी पे खर्च कर दिया और टैक्सी के अंदर ही आपने नशा भी कर लिया और उसके बाद आप वापस आ गए यूनिवर्सिटी के अंदर। आपने तो कह दिया कि जनाब देखिए मैं यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं कर रहा कुछ भी हो रहा, लेकिन यूनिवर्सिटी के बाहर जो है वो सारा कुछ हो रहा है यूनिवर्सिटी के सराउंडिंग एरिया में। वहां पर जो टीचर की जो जिम्मेदारी है, टीचर की एज ए तरबियत साजी में, वो बड़ा ही अहम जो कदम है। अब अगर टीचर ये कहे जी मेरी क्या जिम्मेदारी है, ठीक है इसके वालिदैन जाने, वो वालिदैन तो बेचारे बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं। अब वहां का माहौल जो है वो उन इंस्टीट्यूशन के सरबराहों ने ठीक करना है। और आज भी इंस्टीट्यूशन के सरबराह अगर बेहतर तरीके से काम करें तो मेरी नजर में देखें बुराई और अच्छाई क़यामत तक रहेगी। हमने बुराई को कम करना है, अच्छाई को ऊपर लेके आना है। हम कोई दावा नहीं कर सकते कि हमने बुराई को खत्म कर देना सब ने मिलके, हमने बुराई को मिनिमाइज करना है, चीजों को मिनिमाइज करना है। जब चीजें मिनिमाइज होंगी तो बेहतरी के नतीजे आएंगे। जी थैंक यू सो मच सर, आपकी स्ट्रगल में हम सब आपके साथ हैं इंशाल्लाह। बीसी साहिबा हमें ज्वाइन नहीं कर सकेंगी क्योंकि इत्तेफाक से उनकी एक मीटिंग आ गई है जिसमें वो बिजी हो गई हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मिस बुशरा नदीम से, डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स हैं और फोकल पर्सन भी हैं ड्रग अब्यूज कंट्रोल कमेटी LCWU की, कि वो अपनी कुछ थॉट्स हमसे शेयर करें। जी थैंक यू वेरी मच आमना। मैं ये सबसे पहले तो जुल्फ़िकार साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ और उनकी जो ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब है उसका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमेशा से उन्होंने हमें भी एक्टिव किया और हमारे साथ बहुत एक्टिव रोल प्ले किया और हम सब ने मिलकर यूनिवर्सिटीज़ में, अपनी यूनिवर्सिटी में ख़ास तौर पे बहुत कुछ किया। अभी कल भी बरगद वालों ने एक जो है सेमिनार कराया हुआ था जिसमें हमारी हेड गर्ल जो हैं वो गई हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसमें आईजीबी आए हुए थे और काफी सारे बड़ी पर्सनालिटीज थी जिन्होंने एड्रेस किया। तो उसमें रेहा अफजल जो हमारी हेड गर्ल है उन्होंने भी एड्रेस मैं किया। यहाँ एक बात काटता हूँ। जी जी। वहाँ तीन खवातीन ऐसी थी जिनका ताल्लुक डिफेंस से है, जिनके बच्चे एचएसएन कॉलेज में पढ़ते थे और वो 2 साल पहले ड्रग्स की वजह से एचएसएन कॉलेज में वो फौत हुई। एक हलीमा थी, एक मैडम सुबहत थी, मैं उनके साथ भी काम करता हूँ। तो आप बिलीव करें, देखें वो वालिदैन खुद आगे आए हैं कि जनाब हमारे बच्चे तो इस दुनिया में नहीं अब रहे, तो हम कम से कम दूसरे बच्चों को। जी मैडम। जी जी। तो यही मैं कह रही हूँ कि जो जुल्फ़िकार साहब आपका मैसेज जो है वो यही हमेशा हमने देखा है कि आप सिर्फ ये नहीं कहते कि डोंट डू ड्रग्स, आपका मैसेज होता है कि हमें लेट्स बी एक्टिव, गेट एक्टिव विद योर लाइफ। आपने, और मैं ये चाहती हूँ कि अब हमारे बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स, हम उनको भी इन्वॉल्व करें, हमारी स्टूडेंट काउंसिल जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो और ऑन द होल यूनिवर्सिटी के सारे बच्चे इन्वॉल्व हों एंड एवरीबडी is expected to play an active role for this cause, for the prevention of drug abuse। तो बस मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और फ्यूचर में जो भी आपके एंडेवर्स हैं
लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ हम आपके साथ हैं और आपके शाना बशाना खड़े होकर हम इसके अगेंस्ट काम करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मिस बुशरा। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रोफेसर डॉक्टर तलत सुहेल से, चेयरपर्सन अप्लाइड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, कि वो अपने थॉट्स शेयर करें। Assalamu alaikum to all ji. I would like to thank my Vice Chancellor Bushra Mirza for giving us this opportunity for this webinar. I would like to thank Dr. Amna Ubaid, Dr. Bushra Nadeem, Ms. Ikra, Mr. Siptan, and Mr. Ahmed, and of course, my faculty, my students, my whole team, and very important, Mr. Zulfikar Hussain, for showcasing of this webinar, which was for drug use prevention and our responsibilities. This webinar will be televised and re-televised time and again for the benefit of our students and community. Anti-drugs campaign certainly is the most important issue, which is related with the well-being of the youth, because youth are the real treasure and investment of any nation. And it is a slogan which should we carry on as parents, teachers, community torch bearers, that prevention certainly is better than cure. And we got to focus on saying no to drugs, because when you use drugs, you lose yourself. So the goal of health psychologists and basically Department of Applied Psychology is to train psychologists who are actively involved with all public private sector forums in not only just drug addiction, but all behaviors which are directly influencing the society. I'm really thankful to Mr. Zulfikar Hussain from Drug Advisory Training Hub. I personally see Zulfikar Saab as the torch bearer who is carrying on with a very active three-pronged strategy involving the legal institutions, the educational institutions, and administrative institutions for the well-being of the entire society, and focusing on our youth, the real treasure and the real workforce and human resource on which our entire development rests. So Zulfikar साहब बहुत शुक्रिया, बुशरा नदीम साहिबा बहुत शुक्रिया, आमना बहुत शुक्रिया, Dr. Ubaid, Ms. Ikra, and all my faculty, all my dear students who have participated in it. And I would like to say that your active role should continue, not just up till this webinar, but for good. And you got to play a very proactive role in the society, not a reactive role, but a proactive role, which should take on board everyone, because this is what health psychologist focuses on. So बहुत शुक्रिया जी, and our future interaction with Zulfikar Saab and all campaigns for the drug prevention, we are with you, sir, on board. Thank you so much. आपका जी बहुत-बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत-बहुत Amna, to you. थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वैल्यूबल कमेंट्स, और आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने पेट्रनाइज हमारी सारी एक्टिविटीज़ को आप करती हैं और आपकी सपोर्ट से ही सब कुछ होता है। हम बहुत ग्रेटफुल हैं जुल्फ़िकार हुसैन साहब के इस लेक्चर के लिए भी, और उन सब कामों के लिए, ये जो स्ट्रगल है, आपकी जो कॉज है, इसके लिए आपकी जितनी एफर्ट्स हैं हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और हम जो है आपको यकीन दिलाते हैं कि ये मैसेज आपका आगे जाएगा इंशाल्लाह। और आई एम होपिंग कि हम सब एक ग्रेटर कॉन्शियसनेस के साथ ये सेशन का इख्तिताम कर रहे हैं। हमें अपनी जिम्मेदारी का ज़्यादा एहसास पैदा हुआ है, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट्स और फैकल्टी सब इसमें शामिल होंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू टू यू, थैंक यू टू द ऑडियंस। वी आर कंक्लूडिंग द सेशन। अल्लाह हाफिज़।